Hello students, welcome to the lecture of chapter 1 of science, that is growing plants. The name of the chapter is what? Growing plants. Students, we the human being needs lot of things in our day-to-day life or in order to survive. And among those various things, plants are one of them. Because we need plant for various purposes, like the food that we eat, it comes from plants. The cotton cloth that we wear, it also we get from the cotton plants. Then the oxygen gas, the gas that we the people inhale, we the human being inhale, it is also being produced by the plants. Then the paper in which that is the textbook that you read, the books in which you write, or any kind of paper, it is made from the plants. Not just only for these four purposes we need plants. We need plants for various other purposes. So in order to meet those, we grow plant, or we should grow plant. And here in this chapter you will learn how plants grow and what it need in order to grow. Okay, here in this chapter you will learn how plants grow, how different types of plant grow, and how and what it need in order to grow. So let's have a start. You see, how do plants grow? Plants grow कैसे होते हैं, उगते कैसे हैं, ठीक है? Here what is written, plants are amazing. Why it is amazing? Because it can grow from its different part. It can grow from its different part. Its different part means what? It can grow from seeds, it can grow from roots, stems and leaves. Okay, seeds, roots, stems and leaves. You see at the image here. You see, the seed comes from this flower. From that seed also there are so many plants which can grow from those seeds. The plant, those which are having seeds, they can grow from seeds. And there are some plants which can grow from roots. This part is known as roots. These dahlia plants, it can grow from this root. By cutting one of these root, we can and plant it at another place, and from that root it can grow into a new plants. And the third one is what? Stem. If we cut this plant from here, okay, if we cut this stem from here and grow at other place, then from that also this dahlia plant or some of the plant can grow. The next one, last one is what? Leaves. There are some plants which can also grow from leaves. These dahlia plants can grow from leaves, but for just example, I'm showing you that if we there are some plants, if we cut those plants leaves from here and planted at other place, then from this leaf also it can grow a new plant. Okay, there are some plants, you will be getting details about this later. Okay, there are some plants which can grow from seeds, some plants can grow from roots, some plants can grow from stem, and there are some plants which can grow from leaves also. Okay, so let's first of all we will study details about the seeds. So how to grow plants from seeds? Plants को seeds से grow कैसे करना है? You see, seeds are found inside fruits. Seeds जो है वो fruits के अंदर में होते हैं, and their shape and size, उसका shape and size जो है, सभी अलग अलग प्रकार का जो प्लांट है उन सभी प्लांट्स का सीड का जो शेप और साइज जो है वो अलग अलग होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे देख लो, मग का सीड जो है वो इस तरह से है उसका शेप और साइज, और फिर उसके बाद यहाँ पे येलो मटर जो है वो ज़्यादा बड़ा है उससे. सो लाइक इन डेट वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हैव द डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ seeds. Okay, then how's the structure of seeds? Here is the structure of a bean seeds, but generally the seed used to have this type of structure. The outer part, it
the part that covered the seed is known as what? Seed coat. And inside the seed there is what? There is a cotyledon. And from this cotyledon, when the plant started growing, they used to have their food from this part. Okay, this is how the structure of a seed. This is how the structure of a seed. Then what do plants need to germinate? Plants को अगर germinate होना है, means germination means what? The process by which the seed change into a seedling. Seed से, ठीक है, seed से ये जो seedling है, baby plants, ठीक है, seedling मतलब baby plant या छोटा सा जो plants होते हैं उसको seedling कहते हैं. इस seed से seedling होने तक, मतलब baby plant होने का जो प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस को जर्मिनेशंस कहते हैं. एंड जर्मिनेट होने के लिए, ठीक है, इस सीड से ये छोटा सा प्लांट बनने के लिए एक सीड को, एक प्लांट को क्या चाहिए? तो प्लांट्स, एक सीड को क्या क्या चाहिए? वाटर. इट नीड्स वाटर, एयर एंड वर्म. किसी भी सीड्स को अगर ग्रो होना है, इफ यू वांट टू ग्रो एनी काइंड ऑफ सीड्स, देन देयर इज नीड ऑफ व्हाट? वाटर, एयर एंड वर्म. उसमें पानी होना पड़ेगा, फिर हवा का सप्लाई भी होना पड़ेगा. देन देयर इज ऑल्सो नीड ऑफ वर्म. अगर टेम्परेचर बहुत लो है, इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो, then at that time the seed cannot grow into a seedling. So in order to grow, there is need of what? There is need of warm temperatures. अगर बहुत temperatures low है, then at that time also seed cannot grow into a seedling. So what does plants need in order to germinate? Plants need water, air and warm. Unless and until any kind of seeds do not have these three varieties, then it cannot grow into a seedling. The next is what happen if you sow many seeds too close to one another. अगर किसी भी seeds को, suppose ये जो seeds है, ठीक है, इस seeds को अगर हम लोग 15 सेंटीमीटर का जगह पे अगर हम लोग 10 सीड डाल दें, ठीक है, तुलसी का अगर 10 सीड डाल दें और वो सभी सीड जो है वो उगने लगे, तो क्या होगा? Then at that time what will happen? What will happen at that time? Those plants will compete with each other. Okay, they will compete with each other for what? For air, water, light, nutrients and space. वो लोग हवा के लिए, पानी के लिए, लाइट जो सूरज सनलाइट जो होते हैं उसके लिए, फिर सॉइल के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसके लिए, फिर उसके बाद जगह के लिए, स्पेस के लिए वो लोग कंपीट करने लगेंगे. सो नेचर ने क्या किया? उनका जो सीड है वो एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक में ग्रो ना हो, उसके लिए अपना खुद का तरीका ढूंढा है, ठीक है. The nature find its own way to scatter the seeds from the parent plants or the mother plants, and this is known as what? Dispersal. ठीक है, scattering away of seeds from the parent plants or the mother plants. ठीक है, जो बड़ा वाला जो पेड़ है उससे, ठीक है, सीड्स को दूसरी जगह पे स्प्रेड करना, उसे क्या कहते हैं? डिस्पर्सल कहते हैं. और नेचर अपने सीड को किस तरह से डिस्पर्स करते हैं, स्कैटर करते हैं? बाय विंड, वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लोशंस के द्वारा. विंड मतलब हवा जब जोरों से आते हैं उसके द्वारा, पानी के द्वारा. पानी जो है वो क्या होते हैं? फ्लो होते हैं, तो फ्लो होने के साथ साथ हो जाते हैं. फिर उसके बाद एनिमल्स के द्वारा या एक्सप्लोशंस के द्वारा नेचर जो है वो अपना प्लांट्स का जो सीड है वो स्कैटर करते हैं. सो अभी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे. डिस्पर्सल्स ऑफ सीड बाय विंड. यू सी द नंबर 1, डिस्पर्सल्स ऑफ सीड बाय विंड. Seed dispersed with wind are light and have wing-like structures. और here जनरली क्या होते हैं? सीड्स जो हवा के द्वारा, ठीक है, विंड के द्वारा जो डिस्पर्स होते हैं उसका वजन, ठीक है, दे आर लाइट इन वेट एंड देयर स्ट्रक्चर इज व्हाट? विंग लाइक स्ट्रक्चर. पंख की तरह होते हैं उनका, ठीक है. उसका वजन बहुत कम होते हैं. लाइट मतलब वजन जो है वो बहुत कम होते हैं. फिर उसके बाद स्ट्रक्चर्स, उसका जो स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होते हैं? या तो विंग के जैसा होगा या तो इस तरह से बाल की तरह
होते हैं, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या तो विंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो विंग के द्वारा अगर सीड डिस्पर्स होना है तो उसका वजन जो है वो कम होना पड़ेगा। देन उसके बाद हवा के साथ उड़ के जाए उसके लिए अगर उसमें विंग जैसा होना पड़ेगा या तो हेयर होना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड इज वन डिस्पर्सल बाय वाटर। Okay. Seeds dispersed by water are spongy and have fibrous covering. For example, lotus and coconut. Okay. तो लोटस एंड कोकोनट प्लांट जो है वो क्या होते हैं, उसका आउटर कवर जो है वो फाइबरियस या स्पॉन्जी होता है, जिससे क्या होता है वो पानी में आराम से तैर के फिर दूसरी जगह पे वो उगने लगते हैं। जैसे कि आप लोग कोकोनट का जो सीड है वो देखा होगा, बाहर का जो पोर्शन जो है वो फाइबरियस है, जिसकी वजह से क्या होते हैं वो पानी में तैर सकते हैं, ठीक है, वो डूबते नहीं है। और इस कारण से पानी जब दूसरी जगह जब फ्लो होते जाते हैं तो उस टाइम ये इस तरह का जो सीड्स जो है वो पानी के साथ फ्लो होके दूसरी जगह पे स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लोटस एंड कोकोनट सीड दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो डैंडेलियन एंड मेपल का सीड दिया हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट में क्या है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। कुछ सीड्स जो है वो एनिमल्स के द्वारा भी स्प्रेड होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। जैसे कि उन सीड्स में क्या होते हैं बाहर स्प्रेन या तो हुक की तरह, ये देखो कांटा की तरह होता है। यहाँ पे मैंने कोकलीबर का एग्जाम्पल दिखाया गया है। तो बाहर का जो पोर्शन जो है वो इस तरह कांटे की तरह होते हैं, फिर वो जो है एनिमल्स का हेयर में जब वो टच हो तो वो चिपक जाते हैं, फिर उसके बाद बाद में दूसरी जगह पे गिर जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि चिलीज वगैरह जो है वो क्या होते हैं बर्ड्स जो है वो खाते हैं, फिर उसके बाद वो दूसरी जगह पे टॉयलेट करने के बाद वहां पे उगने लगता है। इस तरह से प्लांट्स जो है वो एनिमल्स के द्वारा भी स्कैटर्ड होते हैं। देन उसके बाद लास्ट में नंबर 4 वन इज व्हाट एक्सप्लोशन, डिस्पर्सल्स बाय एक्सप्लोशन। सीड डिस्पर्स बाय एक्सप्लोशन, बर्ड्स ओपन व्हेन दे आर राइप। मतलब ये पूरी तरह से जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये सडनली फट जाते हैं। जैसे कि ये बेलसिन का यहाँ पे देखिए, जब ये पूरी तरह से जब मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब वो क्या होता है वो सडनली ब्रश होते हैं, फिर उसका जो सराउंडिंग है उसमें वो स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक। ठीक वैसे ही यहाँ पे सोयाबीन और पीस का भी एग्जाम्पल दिया है। ये सब भी क्या होते हैं ये पूरी तरह से जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये बर्स्ट होते हैं, फट जाते हैं, फिर उसका सराउंडिंग में वो स्प्रेड हो जाते हैं। तो इसमें क्या देखा, कुछ सीड जो है वो विंड के द्वारा स्प्रेड होते हैं, कुछ वाटर के द्वारा होते हैं, कुछ एनिमल्स के द्वारा होते हैं, और खुद जो है वो अपने आप एक्सप्लोशन के द्वारा भी उसका सराउंडिंग में स्प्रेड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीड्स, ठीक है। यह सीड्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होते हैं। एंड नेक्स्ट में क्या है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। कुछ प्लांट जो है वो हम लोग रूट्स से भी उसे उगा सकते हैं, जैसे कि डालिया प्लांट जो मैंने आपको पहले भी एक इमेज दिखाया था, ठीक है। डालिया प्लांट जो है वो अपने रूट्स को अगर इसे हम लोग काट के दूसरी जगह पे उगाए, या कैरेट को अगर ऊपर का जो पार्ट है उसे काट के अगर हम लोग दूसरी जगह पे उगाए उससे भी उगते हैं। फिर उसके बाद स्वीट पोटैटो या रेडिस, ये सबको भी अगर हम लोग उगाए रूट्स के द्वारा उगाए तो इससे उगने लगते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ प्लांट जनरली यूज टू स्टोर देयर फूड इन देयर रूट्स, ठीक है। इस तरह का जो प्लांट्स जो है वो जनरली अपना खाना जो है वो रूट्स में स्टोर करते हैं, एंड दिस रूट्स कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स, ठीक है। So this is about the roots, and next is what growing plants from stem. There are some plants, there are so many plants which can grow from stem. But here stem is having two types. One is underground stem and another one is general जो stem होते हैं वो, जैसे कि hibiscus, rose, इस तरह का जो outer जो stem होते हैं बाहर जो हम लोग देख सकते हैं वो वाले stem, ठीक है। तो जिंजर और ये पोटैटो इसे अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं, ठीक है।
तो जिंजर को सपोज यहाँ पे भी मतलब बर्ड्स दिखने लगे हैं, तो इसे अगर हम लोग यहाँ पे काट के फिर दूसरी जगह पे लगाए तो उससे भी नया जो जिंजर का जो स्टैम जो है वो उगने लगते हैं। फिर उसके बाद पोटैटो को भी अगर हम लोग उगाए तो पोटैटो भी वहां से नया स्टैम निकलने लगते हैं। फिर उसके बाद ये जो हिबिस्कस एंड रोज जो है वो क्या होते हैं, ये जो बर्ड्स है इसके द्वारा अगर हम लोग इसे काट के दूसरी जगह पे लगाए तो क्या होते हैं, ये जो छोटे छोटे बर्ड्स है उससे नया स्टेम निकल के फिर वो बड़ा प्लांट बन जाता है। ठीक वैसे ही रोज पे अगर रोज स्टेम को इतनी बड़ी साइज का अगर हम लोग काटे और उसमें दो या तीन बर्ड्स हो तो उसमें से भी नया स्टेम ओके फिर नया प्लांट हम लोग लगा सकते हैं। देन उसके बाद कुछ प्लांट्स ऐसे भी है जो लीव्स के द्वारा भी ग्रो होते हैं। देयर आर सम प्लांट्स व्हिच कैन आल्सो ग्रो फ्रॉम लीव्स लाइक ब्रायोफाइलम, स्नैक प्लांट्स, क्रोटन, स्कूलेंस। इस तरह का प्लांट्स जो है वो लीव्स से उगा सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, बहुत और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो लीव्स से उगा सकते हैं हम लोग। जैसे कि ब्रायोफाइलम में क्या होता है, उसका जो मार्जिन वाला जो पार्ट्स है उसमें छोटे छोटे बर्ड्स निकलने लगते हैं। फिर उसको अगर हम लोग दूसरी जगह पे उगाए तो वहां से नया प्लांट्स निकलने लगते हैं। फिर उसके बाद स्नैक प्लांट्स जो है, स्नैक प्लांट सपोज यहाँ पे तो ऑलरेडी दिखाया ही है कि किस तरह से नया प्लांट्स उगते हैं। पर अगर हम लोग इसे 3 पीसेस या 4 पीसेस भी बनाए और उसे अगर हम लोग लगाए, अगर उसे हम लोग उगाने लगे तो वहां से भी इस तरह से नया नया स्टेम, जैसे कि अगर हम लोग इसको यहाँ से काट दे फिर उसके बाद यहाँ से काट दे उसको अलग अलग जगह पे लगाए तो वहां से भी नया नया प्लांट्स उगने लगते। फिर उसके बाद ये क्रोटन, क्रोटन क्या होते हैं, इस प्लांट्स को अगर हम लोग सॉइल पे जर्मिनेट करना शुरू करें तो क्या होता है, यहाँ से नया प्लांट्स उगने लगते हैं। ये जो पोर्शंस है ठीक है, यहाँ से नया प्लांट्स उगने लगता है। फिर उसके बाद ये स्कूलेंस, स्कूलेंस भी क्या होते हैं, इस लीव्स को अगर हम लोग तोड़ के दूसरी जगह पे उगाए तो वहां से फिर नया प्लांट उगने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो लीव्स से ग्रो होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके घर पे अगर इनमें से कोई भी प्लांट्स है तो उसे देखें कि वो वाकई में उगते हैं या नहीं। ठीक है, so this is all about how the plants can grow from its different plants. Here we come to know that seeds can grow, or plants can grow from seeds. It can also grow from roots. It can grow from stem, as well as it can grow from leaves. Okay. The next topic is what is agriculture. Agriculture किसे कहते हैं? Agriculture is the process of growing plants on a large scale for food or other purposes. Agriculture मतलब बहुत सारे प्लांट्स को बहुत सारे, ठीक है, एक दो नहीं बहुत सारे जब हम लोग उगाते हैं, ग्रो करते हैं खाने के लिए या दूसरे काम के लिए तो उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। एक दो जो प्लांट्स उगाते हैं उसे नहीं कहते, बल्कि बहुत सारे प्लांट्स अगर हम लोग उगाए इन लार्ज स्केल मतलब बहुत सारे नंबरों में इन लार्ज क्वांटिटी, देन इट इज नोन एज व्हाट, एग्रीकल्चर। ठीक है, एक दो प्लांट्स उगाना उसे एग्रीकल्चर नहीं कहते, बल्कि इफ यू ग्रो प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटी, अगर बहुत सारे उगाए तो उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। इट मे बी फॉर फूड और इट मे बी फॉर अदर पर्पसेस। ठीक है, खाने के लिए भी हो सकता है या तो दूसरा काम के लिए, जैसे कि कॉटन प्लांट को उगाना। कॉटन को तो हम लोग खाते नहीं है, पर उसको उगाना अगर बहुत सारे प्लांट्स हम लोग एक जगह पे उगाए तो उसे भी एग्रीकल्चर कहते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर कॉल्ड क्रॉप्स। क्रॉप्स किसे कहते हैं? ठीक है, plants that are grown in large quantities in a particular area or region during a particular season are called crops. मतलब कोई भी प्लांट्स को बहुत सारे एक साथ, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, बहुत सारे एक साथ एक जगह पे एक पार्टिकुलर सीजन पे अगर उगाए तो उसे क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स एक जगह पे एक सीजन पे उगाए तो उसे क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, क्रॉप्स आर ऑफ 2 टाइप, देयर इज व्हाट, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। कुछ क्रॉप्स को खरीफ क्रॉप कहते हैं, कुछ क्रॉप्स को रबी क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि क्रॉप्स ग्रो फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर नॉन एज
खरीफ क्रॉप्स, जो क्रॉप्स जून से लेकर अक्टूबर तक हम लोग ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, उसे खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि राइस, माइस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कॉटन और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हम लोग जून से लेकर अक्टूबर के बीच में उगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रवि क्रॉप्स किसे कहते हैं? व्हाट आर नोन एज रवि क्रॉप्स? क्रॉप्स दैट we can grow from November to April are known as रवि क्रॉप्स। जो हम लोग नवंबर से लेकर अप्रैल तक उगा सकते हैं उसे रवि क्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि व्हीट, पोटैटो, मस्टर्ड, लेगुम्स। लेगुम्स मतलब जैसे कि बहुत सारे प्रकार का जो दाल होते हैं, ग्राम्स, पीस, लेंटिन, इन सभी प्लांट्स को क्या कहते हैं? लेगुम्स कहते हैं। ये सभी प्लांट्स जो है, ये क्रॉप्स जो है, हम लोग क्या कर सकते हैं? नवंबर से अप्रैल के बीच में उगा सकते हैं, इसे रबी क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स मतलब क्या है? जून से अक्टूबर तक जो हम लोग क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं, और रबी क्रॉप मतलब नवंबर से अप्रैल में जो हम लोग ग्रो करते हैं उसे रबी क्रॉप्स कहते हैं। देन नेक्स्ट इज व्हाट? स्टेप्स फार्मिंग। यू सी, ये जो आर्ट जो है वो सभी जगह पे, जैसे कि यहाँ पे गुजरात में, ठीक है, प्लेन्स है, इस तरह से नहीं होते। इस आर्ट में ऐसे भी जगह होते जो माउंटेन का शेप में होते हैं, ठीक है, हिली एरियाज होते हैं, पर वहाँ के लोग भी फार्मिंग तो करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो लोग भी हमारे तरह खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली दे हैव टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पे क्रॉप्स कैसे उगाते हैं? हाउ दोस पीपल यूज टू ग्रो देयर क्रॉप्स? दे यूज टू कट द माउंटेन लाइक इन दिस वे, ओके। वो लोग माउंटेन को इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कट करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, एंड इसे स्टेप फार्मिंग कहते हैं या टेरेस फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। दिस इज नॉन एज व्हाट? स्टेप फार्मिंग या टेरेस फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। पर कोई भी क्रॉप्स को उगाने में, ठीक है, in order to grow any kind of crops, certain work, certain activity that we have to do, that is what? जैसे कि नंबर 1 में फ्लॉगिंग को टिलेस भी कहते हैं। फ्लॉगिंग मतलब क्या है? सॉइल को लूजन करना या ओवरटर्न करना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना, फिर ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, इस तरह से मिक्स अप करना, ठीक है। जैसे कि ये ऑक्सन के द्वारा, ठीक है, सॉइल को लूज करना, या ट्रैक्टर के द्वारा सॉइल को लूज करना, उसे फ्लॉगिंग या टिलेस कहते हैं। इससे क्या होते हैं? सॉइल जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है, फिर उसके बाद में सॉइल के बीच में क्या होता है? हवा रहने के लिए ज्यादा जगह मिलती है, और क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो हो पाते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या है? एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। किसी भी फील्ड को अगर हम लोग प्लॉगिंग करने के बाद अगर सीड्स को वहाँ पे सोइंग करना हो, तो उससे पहले क्या करते हैं हम लोग? मैन्योर मतलब जैसे कि एनिमल वेस्ट जो होते हैं, ठीक है, एनिमल वेस्ट, ठीक है, वो मिक्स कर सकते हैं, या तो फर्टिलाइजर मिक्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा? प्लांट्स का ग्रोथ जो है वो ज्यादा अच्छे से होगा, ठीक है। तो प्लॉगिंग के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज इज व्हाट? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। द नेक्स्ट इज व्हाट? शॉइंग, ठीक है। अभी फर्टिलाइजर या मैनर हम लोगों ने फील्ड में मिक्स कर लिया, फिर इसके बाद नेक्स्ट में क्या है? सीड्स को फील्ड में डालना। प्लेसिंग द सीड्स इन द सॉइल इज नॉन एज व्हाट? शॉइंग, ठीक है। सीड्स को सॉइल में डालना उसे कहते हैं शॉइंग, ठीक है। तो थर्ड स्टेज इज व्हाट? शॉइंग, एंड फोर्थ इज व्हाट? क्रॉप्स प्रोटेक्शन। शॉइंग करने के बाद अगर प्लांट्स उगने लगते हैं तो उसके बाद क्या होते हैं? उस प्लांट्स को, उस क्रॉप्स को इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो आके खाने लगते हैं, तो उससे प्रोटेक्शंस के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड या फंगस अटैक करे तो फंगिसाइड या पेस्टिसाइड्स हम लोग उसमें स्प्रे करते हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से स्प्रेयर से हम लोग स्प्रे करते हैं और क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ड, नेक्स्ट इज इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्रॉप्स को पानी देना। वाटरिंग द क्रॉप्स इज नॉन एज व्हाट? इरिगेशन, ठीक है। कुछ प्लांट्स जो है वो बहुत सारे पानी चाहिए होता है, कुछ प्लांट जो है वो कम पानी चाहिए होता है, कुछ जो है वो मीडियम चाहिए होता है। तो उस हिसाब से जैसे कि ये स्प्रिंकलर के द्वारा किसी किसी प्लांट्स में पानी दिया जाता है, किसी में इस तरह
कैनल बना के पानी सप्लाई किया जाता है फील्ड में, एंड किसी किसी में पूरी फील्ड में पानी भर के क्रॉप्स को इरिगेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वन हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब क्रॉप्स हमारा पूरी तरह से अगर मैच्योर हो जाए, बड़े हो जाने के बाद, रीफ हो जाने के बाद क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसको कट करके कलेक्ट करना होता है, उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द रीफ क्रॉप आर नोन एज हार्वेस्टिंग। जैसे कि ये पूरी तरह से जो मैच्योर हमारा क्रॉप्स जो है वो मैच्योर हो गया है, रीफ हो गया है, तो उसे काट के फिर हम लोग कलेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को वो बोला जाता है हार्वेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है कि क्रॉप्स को मंकी जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मंकी वगैरह जो है वो आके उसे खाने लगते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, स्कैरक्रो मतलब इस तरह का ह्यूमन बींग्स का इस तरह से फिगर बनाते हैं, शेप बना के फिर क्या करते हैं, खेत में रख देते हैं। फील्ड में अगर इस तरह से रखते हैं तो क्या होता है, बर्ड्स या एनिमल्स को लगता है कि वहाँ पे इंसान है, इस डर की वजह से वो लोग वहाँ पे आना छोड़ देते हैं और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉयड होने से हम लोग बचा सकते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे स्केयर क्रो कहते हैं। ठीक है, और ये स्केयर क्रो किससे बनाते हैं, जनरली मेंट फ्रॉम स्टिक एंड ओल्ड क्लॉथ्स, जो पुराने कपड़े होते हैं उससे और स्टिक से बनाया जाता है। ठीक है, और इसे मेनली किस लिए बनाते हैं, बर्ड्स को डराने के लिए। ठीक है, उन लोग का जो फील्ड है, क्रॉप्स का जो फील्ड है, वहां से बर्ड्स को भगाने के लिए बनाया जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1 and hope you understand the chapter number 1 from this video. Thank you.